فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. گرامی قدر صدر اجلاس فضیلت الشیخ عتیق الرحمن اثر ندوی حفظہ اللہ، آج کے اس خوبصورت اجلاس کی نظامت کرتے ہوئے برادر عزیز، جملہ احباب، سامعین اور سامعات، اللہ رب العالمین کے شکر و احسان کے بعد توبہ تعلیمی اور رفاہی ٹرسٹ کے ذمہ داران کو، ممبران کو اور بھیونڈی ٹرسٹ جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے ایک خوبصورت پروگرام منعقد کرنے کی کوشش کی. اللہ ان کے لیے اسے ذخیرہ آخرت بنائے. حاضرین کرام، ناظم اجلاس نے میرے سلسلے میں اعلان کیا کہ مجھے آپ کے سامنے اختلاط مرد و زن اور اس کے بعد مفاسد کے سلسلے میں گفتگو کرنی ہے. اختلاط کا مطلب ہوا ملنا جلنا، جمع ہونا اور خلوت کو دور کرنا، تنہائی سے بچنا. عربی زبان کے اعتبار سے یہ اختلاط کا معنی ہوا. مرد و زن کی وضاحت کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ لوگ مرد و زن کے سلسلے میں اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ مرد و زن کیا ہوتے ہیں. جہاں تک میرے عنوان کا معاملہ ہے، اختلاط کی تعریف کیا ہے، کیونکہ میں بغیر تمہید کے براہ راست اپنے موضوع سے آپ کو جوڑنا چاہتا ہوں. اختلاط کی تعریف ماہرین نے کچھ اس طرح کی ہے: ہوا اجتماع المرأة مع الرجل الذي ليس بمحرم لها اجتماعا يؤدي الى ربا. کسی عورت کا اجنبی مرد کے ساتھ، جو مرد اس کا محرم نہ ہو، کسی ایسی جگہ جمع ہونا، خلوت میں ہونا، تنہائی میں ہونا، جس خلوت اور تنہائی کی بنیاد پر شکوک و شبہات دلوں میں پیدا ہو جائیں، اور اس عورت کے سلسلے میں یا اس مرد کے سلسلے میں یہ تصور پیدا ہو کہ یہ لوگ بدفعلی، فحشکاری اور بے حیائی کی بنیاد پر یہاں جمع ہوئے ہیں، اسے اسلامی شریعت کے نظر میں یا اصطلاح میں اختلاط کہا جاتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اختلاط مرد و زن، عورتوں اور مردوں کا اجتماع، یہاں پر مرد و زن کی اجتماع سے مراد یہ نہیں کہ آپ اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی بیوی اور پھوپھی کے ساتھ، اپنے خالہ کے ساتھ جمع نہ ہو، خلوت میں نہ ہو، کیونکہ اسلام نے عورتوں کی بنیادی طور پر دو تقسیم کی ہے. پہلی وہ تقسیم جس میں عورتوں کو مردوں کا محرم قرار دینے کے بعد شکوک و شبہات کے دائروں کو ختم کر دیا، بے حیائی کے راستے، شبہات کے طور طریق، دلوں میں شہوت کا پیدا ہونا وہاں پر ناگزیر قرار دیا گیا. لیکن اختلاط نے آج ایسی شکل پیدا کر دی جس کے نتیجے میں یہ مقدس رشتے، جسے اماں کا نام دیتے ہیں، بھائی اور بہن کا نام دیتے ہیں، آج وہ مقدس رشتے پامال ہو چکے ہیں. میں انشاءاللہ اپنی گفتگو میں اس بات کو پیش کروں گا. آپ یہ بات دھیان میں رکھیے. میں سے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عالمی سطح پر ماہرین نے ایک دراسہ کیا، احصائیہ کیا، ایک سروے کیا. اس سروے میں رپورٹ لی گئی کہ اختلاط جائز ہے یا ناجائز ہے، حرام ہے یا اس کا جواز ہے. عالمی رپورٹ کے مطابق اس کی جو رپورٹ آئی، اس میں 76% ایسے افراد پائے گئے جنہوں نے اختلاط کو حرام قرار دیا، ناجائز قرار دیا، جبکہ 12% ایسے افراد پائے گئے جنہوں نے اختلاط کے بارے میں فیصلہ کیا
کہ اختلاط تو جائز ہے لیکن شرعی ضوابط اور قوانین کی روشنی میں. لیکن اس کے بعد 12% جو بچتا ہمارا فیصد، اس کی یہ رپورٹ آئی کہ اختلاط کے بارے میں ہمیں علم نہیں کہ وہ جائز یا ناجائز ہے. ایک سروے کی بات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. آئیے میں اپنے اصل موضوع کو آپ کے سامنے رکھوں. اسلامی دلائل کی بنیاد پر میں نے آپ کے لیے انتخاب کیا قرآن کریم کی 3 آیات کو. میں ان آیات کو تفصیل سے نہیں بلکہ ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گا. پہلی آیت کریمہ جس کا تعلق سورہ احزاب آیت نمبر 53 سے ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے اختلاط کے بارے میں بہت واضح طور پہ اعلان کر دیا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اے مسلمانوں کی جماعت، جب بھی تمہیں عورتوں سے کوئی سامان مانگنے کی ضرورت پڑ جائے، کسی ایسے گھر میں تمہارے جانے کی نوبت آئے جہاں سے کوئی سامان تم طلب کرنا چاہتے ہو، تو اللہ رب العالمین نے کہا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے آڑ میں ہو کر تم اس سامان کا مطالبہ کرو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد و خواتین کو اس بات کی ہدایت کر دی کہ جب بھی تم کسی گھر میں کسی کو آواز دینے کے لیے جاؤ تو دروازے کے ٹھیک سامنے کھڑے ہونے کی کوشش نہ کرو، بلکہ سائیڈ اور کنارے میں کھڑے ہونے کے بعد تم آواز دو، کیونکہ اس سے ایسا ہو سکتا ہے کہ گھر کے کسی فرد پر آپ کی نگاہ پڑ جائے، جو نگاہ پڑنا دونوں کے لیے رسوائی کا باعث بنے. میرے بھائیو، یہ آیت کریمہ بنیادی طور پر اختلاط کی جڑوں کو کاٹ دیتی ہے اور کسی اجنبی مرد کا کسی اجنبی عورت کے سامنے ہونا اس کو حرام قرار دیا جائے گا. اگر اس سلسلے میں آپ قرآن کریم سورہ نور آیت نمبر 31 اور 30 ان دونوں آیات کی تفصیل دیکھیں تو آپ کو بات ملے گی کہ اللہ رب العالمین نے مومن مردوں کے ساتھ مومنہ عورتوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور اس کے بارے میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو شخص اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا ایسا انسان دل کے اعتبار سے انتہائی پاکیزہ انسان مانا جائے گا. بصورت دیگر جو انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا، ایسے انسان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے دل کے اعتبار سے اس کے دل میں نفاق ہے، اس کے دل میں شہوت ہے، اس کے دل میں شبہ ہے، جس گنجائش کی بنیاد پر وہ برائی میں واقع ہو سکتا ہے. حضرات گرامی، اگر آپ اختلاط کے سلسلے میں غور کریں تو میں آپ کو بتاؤں، روئے زمین کے وہ حصے یا وہ مکانات یا وہ سوسائٹی جہاں انسان زندگی بسر کرتا ہے، ان میں سب سے مقدس سوسائٹی، سب سے اچھی جگہ اللہ رب العالمین کی مساجد ہیں، جہاں اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے انسان حاضر ہوتا ہے، جہاں شیطان کے وسوسے کمزور پڑ جاتے ہیں، جہاں انسان کا دل اللہ رب العالمین سے مربوط اور معلق ہوتا ہے، جہاں اللہ رب العالمین سے قرب پیدا ہونے کے نتیجے میں دل میں نفاق کی بیماریاں کمزور پڑ جاتی ہیں. لیکن ایسی مقدس ترین جگہوں کے بارے میں آپ کو جان کر حیرت ہوگی بلکہ خوشی ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاط کے دروازوں کو کس طرح مسدود کیا ہے اور اس کے وسائل کو کس طرح ناپید کیا ہے. آئیے میں آپ کے سامنے چند دلائل پیش کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت کے بعد مسجد میں تشریف فرما ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ جب نماز سے فراغت ہوتی تو مرد حضرات مسجدوں میں تھوڑی دیر ٹھہرتے تاکہ عورتیں جو پیچھے صفوں میں ہوتی تھیں وہ اپنے گھر کو واپس چلی جائیں اور اختلاط کی نوبت نہ آئے. لیکن ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ راستے میں مرد و زن باہم گفت و شنید میں لگے ہوئے ہیں، باہم گفتگو کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے آگے بڑھے، عورتوں کو خطاب کیا، کہا یا معاشر النساء استاخرنا فإن ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطرق. عورتوں کی جماعت، تمہارے لیے راستوں کے بیچ میں کوئی حصہ نہیں، تم سائیڈ سے چلنے کی کوشش کرو، تم بیچ راستوں میں کھڑے ہونے کی یا چلنے کی کوشش مت کیا کرو. ام عطیہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سننے کے بعد ہم عورتوں کی حالت ہو گئی کہ جب بھی ہمیں اپنے گھروں سے نکلنا پڑتا راستوں کے کنارے سے جاتی، یہاں تک کہ ہماری چادریں دیواروں کے نشے و فراز سے معلق ہو جایا کرتی تھی، چپ جایا کرتی تھی. یہ حدیث اور اسی کے ساتھ آپ دوسری حدیث پہ غور کیجئے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کی روایت کے مطابق اس بات کو بیان کر دیا، خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها
वखैरु सुफूफिन निसाइ अव्वलुहा व शर्रु आखिरुहा व शर्रुहा अव्वलुहा, मर्दों की सबसे बेहतरीन सफ वो मानी जाती है जो अगली सफ हो, और मर्दों की सबसे बुरी सफ वो है जो पिछली सफ हो। लेकिन मर्दों के बिलमुकाबिल औरतों के बारे में ऐलान किया गया, औरतों की सबसे बेहतरीन वो सब मानी जाती है जो अगली सफे हों, और औरतों की पिछली सफे बेहतरीन सब मानी जाती हैं। क्यों? बुनियादी वजह यह है कि औरतों की अगली सफें मर्दों के सफों से करीब होंगी, अगरचे वहां पर फितने का खौफ नहीं, पर्दा हाइल है, हिजाब की पाबंदी है, फिर भी इंसान के दिल में वहां पर वसवसा पैदा होने का अंदेशा है। इसीलिए वो सबको सबसे बुरी सफ करार दिया गया, जो सफ मर्द और जन को एक दूसरे के करीब कर दे। बात यहां पर खत्म नहीं हुई, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आज़म जाहिर किया, एक इरादे का इजहार किया, लैतना खस्ससना बाब लिन्निसा, काश कि हम लोग औरतों के लिए मस्जिद में कोई दरवाजा खास कर देते। जरा मुसलमानों, सहाबे किराम की गैरत को सुनो, समझने की कोशिश करो। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से जब से ये बात सुना है, फलम यदखुल मिनहु इब्न उमर हत्ता मात, इब्न उमर उस दरवाजे से मौत तक दाखिल नहीं हुए। जरा आप गौर कीजिए, औरतों के लिए जिस दरवाजे को खास करने की तमन्ना नबी की जुबान पर जाहिर हुई, सहाबी उस दरवाजे से दाखिल होने की कोशिश नहीं करे, यहां तक कि मर गए, यहां तक कि मौत से दो चार हो गए। इससे जरा वाज़ेह बात और क्या हो सकती है कि एक अजनबी औरत से एक अजनबी मर्द को किस तरह हिजाब में रहना चाहिए, किस तरह दूर रहना चाहिए, और किस तरह इख्तिलात से अपने आप को बचाने की फिक्र और कोशिश करनी चाहिए। मुसलमानों, मैं आपको बताऊं, मेरे इस बयान का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि लोग ये नजरिया लेकर जाएं, तस्वुर लेकर जाएं कि इस्लाम ने औरतों के हुकूक को पामाल कर दिया, उसे घर में महसूर और कैद कर दिया, जैसा कि मगरिब ज़दा इंसानों का यह दावा है, या वो बेहुदा दुनिया जिन्होंने उरियानियत की बदतरीन मिसाल पैदा करने के बाद सूरत हाल ये बना दी, जिस सूरत हाल का अंदाजा इंशाअल्लाह मेरी आने वाली गुफ्तगू में आप समाप्त करेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूं कि मुस्लिम खातून को या मुस्लिम मर्द को किसी भी तरह गलत प्रोपेगंडों से मुतासिर या मरऊब होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी, उसके अहकाम के मानने का जज्बा, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन को खालिक तस्लीम करने का जो तकादा हमारी जिंदगी से है, वो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमारा खालिक है, उसे इस बात का पूरा हक हासिल है कि हमें जिस तरह चाहे हुक्म दे, जिस सिन्फ को चाहे घर के अंदर पाबंद करे, और जिसे आजादाना को चाहे घर से बाहर निकलकर रिस्क की तलाश करने का हुक्म दे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुल्ली इख्तियार है। मेरे भाइयों, मैं अर्ज करना चाहता था कि इस्लाम ने औरतों को घरों से निकलने का हुक्म दिया, बल्कि बसा औकात औरत को घर से निकलना लाजिम करार दिया गया, और जो औरत घर से बाहर ना निकले, ऐसी औरत को अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके रसूल का नाफरमान करार दिया गया। यहां तक ताकीद की गई कि हैद और निफास वाली औरतें जिन पर नमाज फर्द नहीं, वो भी लाजमी तौर पर ईदगाह में हाजिर हों, सफों के पीछे बैठे, इमाम का खुतबा सुने, मुसलमानों की दुआ में शामिल रहें, शरीक रहें। आप जरा गौर कीजिए, हमारी खुशी के मौके पर, इंजॉय के नाम पर इस्लाम इस बात की कतई इजाजत देता है कि हम लोग अपने घरों की खवातीन को लेकर अपने साथ जाएं, अल्लाह की बंदगी का मुदाहरा करें, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में शामिल और शरीक रहें। और बसा औकात इस्लाम ने औरतों के घर से निकलने को अफजल करार दिया और घर में बाकी रहने को जायज करार दिया। यानी अगर जुमा की नमाज की अदायगी का मसला हो, तो औरत जुमा की नमाज की अदायगी के लिए अगर जगह उसके लिए मुतय्यन है, तो वहां आकर जुमा की नमाज पढ़े। रहा पंजोता नमाज का मसला, तो मुझे साफ तौर पे आप कहने दीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाद सहाबियात ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये बात पसंद है कि मैं आपके साथ आपकी इमामत में मस्जिद नबवी में आकर के नमाज अदा करूं। जरा आप गौर कीजिए, मस्जिद नबवी का तकद्दुस, मस्जिद नबवी की अहमियत और फजीलत, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ने का शौक कितना ज्यादा रहा होगा। खातून ने सवाल किया, लेकिन नबी का जवाब क्या था? जरा इस बात पर मुसलमानों गौर करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मुझे खबर मिली तुम मेरे साथ मेरी मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहती हो, लेकिन याद रखो, सलातु के फी मस्जिद जारी के अहक्कु इलैया मिन सलाति के फी मस्जिदी, तुम्हारा अपने पड़ोस की मस्जिद में नमाज अदा करना मेरी मस्जिद में नमाज अदा करने से बेहतर है, और तुम्हारा अपने घर में नमाज पढ़ना, वो सलातु की फी बैती की खैरुल लकी मिन सलाति के फी मस्जिद जारिक, तुम्हारा अपने घर में नमाज पढ़ना तुम्हारे पड़ोस की मस्जिद में
नमाज पढ़ने से अफजल है। इससे बुलंद दर्जा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, व सलातुकी फी कारिदारिकी खैरुल लकी मिन सलातिकी फी बैतिक। तुम्हारा अपने घर की तन्हाई में, अपने बेडरूम में, सही ताबीर के मुताबिक तुम्हारा अपने बेडरूम में नमाज अदा करना, ये तुम्हारे घर के सहन में, घर के आंगन में या घर के ओपन जगह में नमाज पढ़ने से बेहतर है। आप गौर करो भाइयों, जब नमाज की अदायगी के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात का हुक्म देते हैं कि एक औरत अगर 5 वक्ता नमाज अपने बेडरूम में पढ़ती है तो उसकी नमाज सबसे बेहतर नमाज है। अब आप सोचिए कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की अदायगी के लिए, जब हज और उम्रे की अदायगी के लिए, जहां से मुकद्दस कोई रोई जमीन नहीं हो सकती, उम्रे के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरगीब क्या थी, तालीम क्या थी, हुक्म क्या था, आपने रगबत क्या दिलाई? आपने फضل इब्न अब्बास और दीगर सहाबा इकराम को अपनी निगाहों को पस्त करने का हुक्म दिया था, निगाहों के फेरने का हुक्म दिया था। मैं सिर्फ बताना चाहता हूं, जब इन मुकद्दस तरीन इबादत को अंजाम देने के लिए अल्लाह के मुकद्दस घरों में ये पाबंदी रखी गई है, फिर बाजारों में हमारी माँ और बहनों का बेहिजाबी के साथ घूमना, गर्दिश करना, तालीम गाहों में मर्दो जन का इख्तिलात, बच्चियों का बच्चों के साथ मखलूक तौर पे तालीम हासिल करना, हॉस्पिटल में, कारखानों में, ऑफिस में और दूसरी बहुत सारी जगहों में औरतों का बेमहाबा अजनबी मर्दों के साथ शाना बशाना काम करना, नौकरी करना, इन तमाम चीजों के बारे में आपका तस्वुर क्या होना चाहिए? शायद मेरे बारे में आप ये फैसला कर दो कि बहुत मुतशद्दिद हूं मैं, लेकिन अभी मैं आपके सामने जो रिपोर्ट पेश करूंगा, अपने दिल पे हाथ रख के सवाल करना कि मेरी बातों में हकाइक कितने हैं। आइए मैं आपको जोड़ूं बराह रास्त ऐसी दुनिया से जिन लोगों ने इस्लाम दुश्मनी में, इस्लामी अखलाक और इस्लामी हिजाब की दुश्मनी में औरतों को बेहिजाबाना घूमने की आजादी दी। ऐसे लोगों के मुल्क में सूरत हाल क्या पेश आई, इस सिलसिले में आपको बताना चाहता हूं। आप ये मत सोचिए कि हिजाब या पर्दा सिर्फ इस्लाम की पैदावार है, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद से पेशतर यूरोप का तस्वुर यह था, जैसा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इस्लाम और औरत में लिखा है। उसमें लिखते हैं कि यूरोप का जो कल्चर का दौर था, जो तहजीबी दौर था, उस दौर में मर्दोजन के दायरेकार अलग अलग थे। औरतों को कुछ मखसूस आमाल अंजाम देने के लिए घरों से बाहर निकलने की इजाजत थी, लेकिन जब वो खातून अपने घर से बाहर निकलने की कोशिश करती तो ऐसा लिबास ज़ेबतन करने के बाद जाती थी कि उसके जिस्म का चमड़ा या उसके जिस्म का रंग, उसका नजर आना बहुत दूर की बात है। जो लिबास उसने पहन रखा था, उस लिबास की रंगत को अजनबी लोग पहचान नहीं सकते थे, देख नहीं सकते थे। ये यूरोप की सूरत हाल थी। इस्लाम की आमद से पहले इस्लाम ने इसमें तहदीब दी, सलीका दिया, हुनर अता किया और इस्लाम ने बेहतरीन हिजाब का एक नमूना पेश किया। मैं आपसे अर्ज कर रहा था, ये यूरोप की सूरत हाल थी जब यूरोप का गोल्डन एज था, जब उसका सबसे जरूरी दौर था ऐसे मौके पर। लेकिन आज सूरत हाल यूरोप और मगरिब की क्या है? इस सिलसिले में एक आलमी मौर्रिख है जिसका नाम मोहम्मद अहमद अल मुकद्दम है। उसने एक किताब लिखा अरबी जुबान में, अल-औदा बिल हिजाब, पर्दे के सिलसिले में किताब में उसने निकाब कशाई की कि मुसलमानों की जिंदगी के साथ साथ मशरिकी दुनिया के साथ साथ मगरिबी दुनिया में मखलूत तालीम का कोई तस्वुर नहीं था। जब बरतानिया में इजबारी तौर पर मखलूत तालीम को फर्द करार दिया गया, तालीम ही नहीं बल्कि सिर्फ तालीम नहीं बल्कि रिहाइश, हॉस्टल, लड़कों के साथ लड़कियों को रखा गया, तो 1870 से लेकर के 1885 तक की जो तारीख है वो कितनी दिलदोज है। उसमें इस बात को बयान किया गया कि 10 में 7 नौजवान जिन्होंने 10+2 क्लास किया था, इंटर जिन्होंने किया था, इंटर करने के बाद जब उनका टेस्ट किया गया जिस्मानी तौर पर, तो जिस्मानी तौर पर 10 में 7 लड़के अनफिट पाए गए, यानी वो फोर्स में भर्ती करने के काबिल नहीं रहे। क्यों? इसलिए कि मखलूक का ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया जिस माहौल के नतीजे में उरियानियत, फहशकारी, जिना और बेहयाई इतनी आम हुई कि नौजवान होने से पहले बहुत सारे लोगों ने जवानी की कुव्वत को खो दिया और वो शादी के मरहले में दाखिल होने के लायक न रहे। ये बरताने की रिपोर्ट में आपसे पेश कर रहा था। अगर इस सिलसिले में आप गौर करें कि इख्तिलात के नुकसानात क्या हैं, तो इख्तिलात के नुकसानात अगर आपको मैं तफसील से बताऊं तो शायद बहुत बात तवील हो जाएगी, लेकिन मैं आपके सामने बात बताना जरूर चाहूंगा कि इख्तिलात के बेशुमार मफासिद हैं। उन मफासिद में सबसे अजीम फसाद
जिस फसाद के बारे में सुनकर इंसान के रोटे थर्रा जाएंगे वो फसाद ये है कि जिना को बढ़ावा मिलता है। लोक देवी ने, जो अमेरिका के एक डॉक्टर, वो लिखती है कि मेरा अपना मानना यह है कि जब भी कोई अजनबी मर्द किसी अजनबी औरत के साथ लंबी मुद्दत तक ठहरेगा तो उन दोनों का फितने से मामून और महफूज रह पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यह कौन कहता है? अगर इस्लामी तारीख के हवाले से या कुरान और हदीस के हवाले से आपके सामने बात पेश की जाए तो शायद आपके दिल में कहीं ना कहीं यह कीड़ा मौजूद रहे कि जनाब ये लोग तो ऐसी ही बातें करते हैं। लेकिन मैं उन लोगों के अकवाल आपके सामने पेश कर रहा हूं जिन्होंने बेहयाई का वो मंजर पेश किया था जिस मंजर के बाद किसी और मंजर का तस्वुर नहीं किया जा सकता। मैं आपको बताऊं, इख्तिलात का एक फसाद जो हमारे माशरे का नासूर बन चुका है, जिसके नतीजे में एड्स की बीमारी, कैंसर की बीमारी, ऐसी बीमारियां जो जानलेवा हैं, वो बीमारियां आज हमारी सोसाइटी में पैदा हो चुकी हैं। उसके जानिब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा करते हुए कहा था, मा ज़हरतुल फाहिशा फी कौमिन क़त्तु हत्ता यु'लिनु बिहा इल्ला फशा फ़ीहुम ताऊन। जिस कौम के अंदर फहशकारी आम हो जाए, जिना आम हो जाए, ऐसी कौम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ताऊन जैसी मोहलिक बीमारी और नई नई बीमारियां मुसल्लत करता है, जो बीमारियां आबा व अजदाद में सुनी नहीं गई होंगी। आपको ये बात मालूम होगी कि हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में जिना के बारे में जो रिपोर्ट शाये की गई 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक आपके स्टेट बंगाल, बिहार, आसाम, उत्तर प्रदेश और आपका महाराष्ट्र और सबसे बदतरीन जो शक्ल है फहशकारी और बेहयाई की, वो दिल्ली और उसके मदाफात की है। मैं उसकी जानिब इशारा करूंगा। एक स्टेट में सालाना जो आदाद शुमार किए गए, सालाना जो रिपोर्ट शाये की गई, वो 14,83,000 कुछ केसेस ऐसे पेश आए जो जिना के केसेस थे, जो थाने में दर्ज हुए। आप गौर कीजिए, थाने में जो केस दर्ज नहीं हुए उनकी तादाद कितनी बड़ी होगी, उसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिना एक ऐसी बीमारी है जो खानदान को तोड़ देती है। यह ऐसी बीमारी है जिस बीमारी के नतीजे में एक शरीफ इंसान दलील बन जाता है। यह ऐसी वबा है जो वबा इंसान को सफ़े हस्ती से मिटा देती है। यह ऐसी वबा है जिसके नतीजे में इस्लाम ने इंसानों की दो तकसीम की है। पहली तकसीम, गैर शादीशुदा इंसान अगर जिना कर ले तो उसकी हद यह है कि उसे 100 कोड़े मारे जाएं, और अगर शादीशुदा इंसान से जिना सरजद हो जाए तो उसकी हद यह है कि उसे रोए जमीन पर जिंदगी गुजारने का हक हासिल नहीं है, उसे रज्म कर दिया जाएगा। उसे लोगों के सामने बेरहमी के साथ संसार कर दिया जाएगा। जरा आप गौर करो, ये जो बीमारियां या बुराइयां पैदा होती हैं, उन बुराइयों के असबाब में सिर्फ फहरिस्त हमारा इख्तिलात है, हमारा मर्दोजन के साथ मिलकर रहकर जिंदगी गुजारने का जो जज्बा और शौक वो है। मैं आपको बताना चाहता हूं फ्रांस के बारे में। जब उन लोगों ने इख्तिलात को आम करने की कोशिश की तो फ्रांस के कॉलेज की जो रिपोर्ट पेश की गई, हाई स्कूल और इंटर के तलबा और तालिबात की, उन तालिबात में 48% लड़कियां हमल से पाई गई। आप जरा गौर करो मेरे भाइयों, ये बात मैं नहीं कहता हूं, आप नेट पे जाओ, सर्च करो, तहकीक करो, आपको सारी रिपोर्टें आपके सामने आ जाएंगी। फ्रांस के अलावा अगर आप जर्मन में जाएं तो जर्मन की सोसाइटी के बारे में आपको जानकर हैरत होगी। जो लोग इस्लाम को दागदार करने की कोशिश करते हैं, इस्लाम पर एतराज करते हैं कि इस्लाम में शिद्दत है, इस्लाम में तंगी है, ऐसे लोगों की सोसाइटी का असर क्या हुआ। आप जानते हैं कि आज हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी ओपन माहौल चाहती है। ओपन माहौल के नतीजे में एक अजनबी मर्द का एक अजनबी औरत से गुफ्तगू करना, बातचीत करना जायज करार दिया जाना चाहिए, कानून बनना चाहिए, इसका मुतालबा होता है। लेकिन कानून का मुतालबा करने वाले इंसानों की हालत क्या है, उस सिलसिले में आपको बताऊं, शादी से पहले नाजायज ताल्लुकात की जो शरह है वो शरह 63% है कि 63% लड़कियां जिनकी उम्र 16 से लेकर 18 साल है, जब शादी होकर अपने घर गई, ससुराल गई, तो ससुराल जाने के बाद 63% लड़कियां हमल से पाई गई। आप जरा बताओ, संजीदा होकर सोचो मुसलमानों कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत पहले अगर ये ज़ाब्ता दिया कि अजनबी और गैर अजनबी में तफरीक की, महरिम और गैर महरिम का फर्क बताया ताकि मुआशरा पाकीज़ा हो, अमन कायम हो, सोसाइटी परवान चढ़े, तरक्की करे। लेकिन आपको पता है कि आज शादी के नाम पर हमारी सूरत हाल क्या बन चुकी है कि हम शादियों में जहेज के नाम पर, खानदान के नाम पर, जात बिरादरी के नाम पर शादियां मुअख्खर करते हैं
اور शादियों के मौखर होने का असर ये होता है कि हमारी बच्चियां या तो गैर मुस्लिमों के साथ राह फरार इख्तियार कर लेती हैं, या किसी मुसलमान से उनका नाजायज ताल्लुक हो जाता है, या बेहयाई की दलदल में फंसने के बाद जब हमल से हो जाती हैं तो घर के दो तरफैन के जिम्मेदारान दोनों की चुपके से निकाह कराने की कोशिश करते हैं। ये मौका, ये जवाब फराहम कहां से हुआ? अगर इसका सवाल का जवाब लिया जाए तो जवाब मिलेगा, हमने इस्लामी हिजाब का जो तकादा था उस तकादे को पूरा करने की कोशिश न की, जिसके नतीजे में सूरत हाल ये निकली। मैं अर्ज करना चाहता था कि मिस्र में एक रिपोर्ट के मुताबिक 12%, जरा आप गौर कीजिए, इस्लामी मुल्क मिस्र के एक रिपोर्ट के मुताबिक 12% ऐसे अफराद पैदा पाए गए जिन्होंने निकाह के नाम पर और इसको माशरे के नाम पर कि मेरी जिंदगी इसके साथ गुजर सकती या नहीं, इसके लिए जवाज उर्फी जिसको अरबी जुबान में कहते हैं, उर्फी जवाज के नाम पर उन लोगों ने आजादाना तौर पे जिंदगी गुजारने की कोशिश की। नतीजा ये निकला 12% बच्चे ऐसे पैदा हुए जिन बच्चों के बारे में यह फैसला करना मुश्किल हो गया ये बच्चा किस बाप की जानिब मंसूब किया जाए। क्यों? दोनों ने मुआशका किया, अय्याशी पर मबनी जिंदगी गुजारी और उसके बाद फिर दोनों में तफरीक हो गई। अब यह हमल जो पेट में करार पा रहा था उसे मंसूब किसकी जानिब किया जाए? मेरे भाइयों, आपको पता होगा टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली और उसके मदाफात में इख्तिलाफ के नतीजे में, बेपर्दगी और बेहिजाबी के नतीजे में जो जिना की शर है वो बदतरीन शर है। वहां पर सगे भाई का सगी बहन के साथ जिना करना, भांजे का खाला के साथ जिना करना, ये तमाम की तमाम बातें एक आम सी बात हो चुकी हैं। इन तमाम दलाइल को पेश करने के बाद मैं खुलासे के तौर पे आपके सामने जो बात पेश करना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बात को बड़ी दर्दमंदी के साथ समझना। इस्लाम हया का दीन है, गैरत का दीन है, पाकीज़गी का दीन है, वफादारी का दीन है, हुकूक को महफूज करने का दीन है, अल्लाह के कानून को तस्लीम कर लेने का दीन है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन के कानून को तस्लीम करने का तकादा यह हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्द और जन को जिन अहकाम का मुकल्लफ और पाबंद किया, दोनों असनाफ की जिम्मेदारी यह बनती है कि उन अहकाम की अपनी जिंदगी में तत्बीक दें, उनको अमली जामा पहनाएं। अगर खवातीन को घरों के अंदर काम करने की पाबंदी दी गई तो लाजमी तौर पर औरतों को अपने घरों के उमूर को अंजाम देने की कोशिश और फिक्र करनी चाहिए। आज तलाक की जो कसरत से नौबत है उसकी वजह क्या है? उसकी दो बुनियादी वजह आलमी रिकॉर्ड में शुमार की गई। पहली वजह आला तालीम और दूसरी वजह लड़कियों का वजीफा या अमल या ड्यूटी या नौकरी करना। नौकरी पेशा खातून कभी भी अपने घर के तई, अपने बच्चों के तई, अपने शौहर के तई वफादार नहीं हो सकती है। क्यों? आप जरा कयास कीजिए, आप जरा सोचिए, सोचने का माहौल आप मुकारना कीजिए, कंपैरिजन कीजिए अपने घर का और ऑफिस का, अपने घर का और कॉलेज का, अपने घर का और किसी कारखाने में काम करने का। आप जानते हैं कि किसी ऑफिस में काम करने के लिए ऑफिस बॉय हो, ऑफिस गर्ल हो, उसे वेल मेंटेन होकर अच्छे लिबास में, अच्छी हैयत में हाजिरी देनी है। लेकिन जब वो इंसान, चाहे वो मर्द या औरत, अपने घरों में वापसी उनकी होती है तो फौरन वो बेहतरीन लिबास उतारने के बाद घर के लिबास में आ जाते हैं। चाहे वो मर्द हो या औरतें हो, घर या किचन के लिबास में अगर औरत रहेगी और शौहर की निगाह उस पर बार बार पड़ेगी, और फिर वही शौहर जब अपने ऑफिस में किसी लड़की को काम करते हुए देखता है अच्छी हैयत में, बेहतरीन लिबास में, और आपकी जुबान में अगर मैं कहूं मेकअप में, तो फिर उसके सामने जो कंपैरिजन की सूरत बनती है अपनी बीवी का, जब मुकारना करता किसी अजनबी औरत से, तो कहीं ना कहीं उसके दिल में यह शुबा पैदा होगा कि मेरी बीवी या मेरी बीवी इस औरत के बिलमुकाबिल मेरा ज्यादा एहतराम नहीं करती। इसी के बरअक्स अगर आपकी बीवी कहीं पर काम करती है तो उसके साथ काम करने वाला मर्द भी एतकाबुल पैदा होगा। और मैं ये बात नहीं कहता, बल्कि आज जो सवाल आते हैं तलाक के बाद, वजह क्या है, बुनियाद क्या है, सबब क्या है, तो पता चलता है उसके पीछे असबाब यही सारे हैं। बहरहाल मेरे भाइयों, इस्लाम ने हिजाब की पाबंदी का जो हुक्म दिया, उस पाबंदी में हमारी भलाई है, हमारी आदमत है, हमारी अहमियत है। यानी इस्लाम ने अगर औरतों को हिजाब में रहने का हुक्म दिया तो इसका मतलब नहीं कि उसकी अहमियत को पामाल कर दिया, उसे यानी उसकी कदर कीमत को खत्म कर दिया, नहीं, बल्कि औरतों की कदर कीमत का तकादा यह है कि किसी भी कीमती चीज को बड़ी हिफाजत के साथ अंदरूनी खाना रखने की कोशिश की जाती है। लिहाजा मेरे भाइयों, इख्तिलात के मफासिद को, उसकी खतरनाकी को, उसकी बेहयाई को समझिए। और इस्लाम ने अजनबी
اور محرم दोनों की जो तफरीक की है उस तफरीक के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिर क्यों कुरान करीम में मर्द और जन को निगाह पस्त रखने का हुक्म दिया, इस पर हमें संजीदा होकर गौर करने की जरूरत है। मेरे भाइयों, मैं आपसे सिर्फ दो मुख्तसर चीजें पेश करने के बाद इंशाअल्लाह रुखसत होना चाहूंगा, क्योंकि वक्त मेरा मुकम्मल होने के करीब है। पहली बात तो यह है कि घर से बाहर निकलने के जवाबित जो इस्लाम ने दिए हैं, उन जवाबित पर मर्दों को औरतों से पहले सोचना होगा। इस्लाम ने एक ज़ाब्ता यह दिया कि कोई भी खातून अपने घर से बाहर निकलने का जब इरादा करती हो, सफर का इरादा रखती हो खास तौर पर, तो उसे चाहिए कि महरिम के साथ जाए। लिहाजा मर्दों की जिम्मेदारी यह बनती है कि जब भी अपने घरों की औरतों को कहीं भेजने की कोशिश करें तो अपने साथ लेकर जाएं, अपना वक्त दें, अपना पैसा सर्व करें। किसी गैर महरिम के साथ अपने घर की खातून को भेजना गोया बेहयाई को, बेगैरती को दावत देने के मुतरादिफ है। खवातीन की जिम्मेदारी यह बनती है जब अपने घरों से निकलने की कोशिश करें तो हिजाब के साथ निकलें, मुअत्तर होकर ना निकलें, मेकअप करके ना निकलें, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अय्युमा इमरातिन इस्तातरत फमरत बिरिजालिन लियजिदू रिहाहा फयजानिया, जो औरत भी मेकअप करने के बाद, खुशबू से मुअत्तर होने के बाद अपने घरों से बाहर निकल कर जाए और अजनबी मर्दों से उसका गुजर, जो लोग उसकी खुशबू को पाएं, तो ऐसी औरत जिना की दावत देने वाली है। मेरे घरों की खवातीन, तुम्हारी जिंदगी और मर्द, तुम्हारे घरों के मर्दों की जिंदगी, उन दोनों की जिंदगियों का तकादा यह है तुम्हारे बीच खुशगवार माहौल पैदा हो, तुम्हारे घर के अफराद तुम्हारे वजूद से राहत महसूस करें। तुम्हारे वजूद का हर किसी मतलब और माना नहीं कि अजनबी लोग तुम्हारे वजूद से लज्जत और फराहत महसूस करें। बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के बारे में कहा कि जो औरत मुअत्तर होकर घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है और अजनबी मर्दों से उसका गुजर होता है, वो जिना की दावत देने वाली होती है। ये बात मस्जिद में आने के सिलसिले में बड़ी सख्त पेश की गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अय्युमा इमरातिन असाबत बखूरा फला तशहद माना लिशाल आखिरा, जो औरत भी खुशबू इस्तेमाल कर ले वो हमारे साथ इशा की नमाज में शरीक ना हो। जरा आप गौर करो, खुशबू इस्तेमाल करने के बाद अगर औरत मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए नहीं आ सकती, तो फिर खुशबू इस्तेमाल करने के बाद अजनबी मर्दों से उसका गुजर हो, इसका क्या मतलब होगा। आज आप जानते हैं मेरे भाइयों, 8 लाख से ज्यादा मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ रिश्ता कायम करने में नाकाम हो गई। मैं कामयाब नहीं कहता, नाकाम हुई। सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों की अगर गैर मुस्लिमों के साथ मुंसलिक हुई तो उसके पसे पर्दा कौन से वजूहात थे, ये फसाद इतना अजीम क्यों पैदा हुआ। उसका बुनियादी जवाब यह है कि उन लड़कियों को आजादाना तौर पर जिंदगी गुजारने का मौका दिया, उन पर कोई रकाबा और निगरानी नहीं थी, जिसके नतीजे में एक लंबा माहौल उन्हें गुजारने का मौका मिला। और लंबे माहौल के नतीजे में कसरतुल मसास तुमीतुल एहसास, कसरत से जब किसी के साथ आप रहते हैं तो एहसास मुर्दा हो जाता है। लिहाजा नतीजा हमारे सामने मेरे भाइयों, इसलिए उसका सद्देबाब यह है कि हम लोग इख्तिलाफ से अपने आप को बचाएं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।